Okay, students, on last lecture, last two lectures, we have discussed identities for regular expressions. These were the identities useful for manipulation of regular expression from one form to the another form. Then we have discussed Arden's theorem and its proof. Okay, and we have shown that how to prove the Arden's theorem and uniqueness of the solution. Then we discussed how we can use the Arden's theorem to find the regular expression corresponding to a given FA. For this, we have seen an algebraic method where we were forming a system of linear equations which we were solving using substitution and Arden's theorem, okay, to find the regular expression corresponding to a given FA. So we have seen certain examples through which we have also made sure that the method is correct and it is giving us the correct regular expression. Is it? Now we are moving to the today's agenda. Today we will discuss regular versus non-regular languages. Just a minute. Okay, so we will discuss regular versus non-regular expressions. As I have already told you that our FAs and regular expressions represent a small set of possible languages, and that set is called the regular set. Okay, so it is able to represent only the regular languages. But there are certain other languages which are not regular. Now, how we can identify that certain given languages are regular or non-regular? So for this, we will be discussing one pumping lemma for regular languages. We will also see its proof. It will show us how we can find that a given language is regular or not. So in the application of pumping lemma, we will look at how to prove that a given language is regular or not. Now we come to our first slide. That is, here I wish that you design a FA for the language L is equal to a to the power n, b to the power n greater than equal to 1. If you have pen paper with you, try to make an FA corresponding to it. Okay. Try to make an FA corresponding to it. I am giving you 1 minute. Okay. So 1 minute I will not be speaking here. You just concentrate and try to make an FA corresponding to it. Then I will be discussing how we can do it. A to the power n, b to the power n greater than equal to 1. The language is certain number of A's followed by the same number of B's. Suppose the value of n here is 3. So 3 A's will come in succession, and after it 3 B's will come in succession, because here also we have n. Okay. So the number of A's and number of B's will be equal. So all the words, language will be consisting of all the words such that AB will be there, double A, double B will be there, triple A, triple B will be there, and so on. So this will be the language. For this you have to make an FA. Class, are you making FA for this? Is someone from class, are you able to make the FA for this? You are designing it? Yes, sir. Okay.
So is there anybody who has made the FA or who can explain how we can make FA corresponding to this language? Someone from class. Can you speak a little bit loud? Your voice is quite low. स्टेट बनाए उससे आगे कैसे करके Can you repeat? Your voice is breaking. Is there anyone who has completed the FA? Garima, Aditya, Achal. ये सर कंप्लीटेड पर वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क ब्रेक आ रहा है मेरे में। हाँ नहीं, अब सही आ रही है वॉइस आपकी, अब आप बोल सकते हैं। सर पहले एक ए रीड करके सेकंड स्टेट पे पहुंचेंगे स्टार्ट से जी, ओके। फिर सेकंड स्टेट से बी रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। ठीक है, मीन्स यू वांट टू से दैट आई हैव टू फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दी स्टार्ट स्टेट। दिस इज माई स्टार्ट स्टेट। यहाँ से मैंने एक ए रीड किया, आई विल रीच टू दिस स्टेट एंड बिकॉज एक ए है तो ये एक बी से बैलेंस होगा, सो बी से करके आई विल रीच टू ए फाइनल स्टेट। इज इट क्लियर? So this is one success path for the string AB. Okay. इस बताइए इसके बाद क्या करेंगे? AB तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट अगला क्या होगा? सर सेकंड स्टेट पे वो लग जाएगा सेल्फ लूप शायद। सेकंड स्टेट पे सेल्फ लूप। चलिए एक सेकंड स्टेट पे सेल्फ लूप लगा देते हैं। अगर सेकंड स्टेट पे मैंने सेल्फ लूप लगाया तो अब कितने भी ए आ सकते हैं यहाँ। इज इट? मीन्स जब मैं इस स्टेट में पहले था जब ये सेल्फ लूप नहीं लगा था, इज इट, जब ये सेल्फ लूप नहीं लगा था तब क्या होता? तब यहाँ इस स्टेट पे पहुंचने का मतलब था कि मेरे पास एक ए आया है, सो श्योरली अगर ये एक्सेप्ट होगा तो ये एक बी से एक्सेप्ट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ये सेल्फ लूप यहाँ लगाया वैसे ही अब मुझे ये नहीं मालूम कि अगर मैं इस स्टेट पे आया हूँ तो मेरे पास कितने ए हैं। कम से कम एक ए है ये तो मालूम है, लेकिन कितने हैं ये नहीं मालूम। अब मुझे क्या चाहिए? जितने ए मुझे यहाँ मिले होंगे उतने ही ए मुझे, उतने ही बी मुझे आगे चाहिए। सो मैं कैसे तो जो फाइनल है सेल्फ लूप फाइनल स्टेट पे, सेल्फ लूप फाइनल स्टेट पे, चलिए सेल्फ लूप फाइनल स्टेट पे कर दिया बी पे सपोज, इज इट, ताकि ए। लेकिन अब जब मैं लूप लगाता हूं तो कैन आई काउंट द नंबर ऑफ एज? अगर मैंने एक लूप लगाया तो उसमें मुझे मालूम चलेगा कि कितने ए आए हैं। ये सुन नहीं क्लियर हुआ क्लास? whenever I put a loop, I cannot count the number of A's. अगर मुझे number of A's काउंट करने तो उसका केवल एक ही तरीका है कि मैं हर ए को रीड करने के बाद एक स्टेट चेंज करूँ। जैसे आपको ध्यान करिए, जब हमने अपने एफएस डिस्कस किए थे तो हमने एक एफए बनाया था ऑल वर्ड्स कंटेनिंग डबल ए इन दैम। ओके, तो हमने सक्सेस पाथ कैसे बनाया था? स्टार्ट स्टेट, एक ए, फिर अगला ए, देन इट वाज द सक्सेस। सो मैं क्या कर रहा था? काउंट कर रहा था कि जैसे ही पहला ए आया तो इस स्टेट पे आया। इस स्टेट पे होने का मतलब क्या? आई हैव रेड 1 ए। इस स्टेट पे पहुंचने का मतलब क्या? आई हैव रेड 2 एज। अगर मैं यहाँ सेल्फ लूप लगा दूंगा, मुझे 3 ए चाहिए होते तो मैं क्या करता? एक और स्टेट इससे आगे बनाता। तो अगर इस स्टेट में पहुंच रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास कितने एज हैं? 3 एज हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे काउंट करने तो हर बार मुझे स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। और आप देखिए एक ए के लिए तो ऐसा है। तो ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक इरेजर लेते हैं।
सेल्फ लूप तो नहीं लगेगा, ये क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि एक दूसरी स्टेट ली ऑन ए। तो अब अगर मैं इस स्टेट में हूं तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, दो एज है। दो एज है तो किससे एक्सेप्ट होंगे, दो बी से, यानी कि आगे का मेरा पाथ क्या होगा, बी बी एंड देन इट इज अ सक्सेस। ओके, एक और ये बी भी मिटा देते हैं यहां से। इज इट तो अगर ए बी के लिए ये पाथ होगा, डबल बी के लिए ये पाथ होगा। इसी तरह से अगर मुझे ट्रिपल बी चाहिए तो यानी कि इसी स्टेट से, क्योंकि ए सारे पहले आने तो पहला ए, दूसरा ए, सारे ए पहले आएंगे, फिर तीसरा ए, तो यानी कि इस स्टेट पे पहुंचने का मतलब क्या है, मैं स्टेट पहुंच सक्सेस से मुझे 3 बी, तो 1 बी 2 बी एंड 3 बी, देन इट विल बी दी सक्सेस एंड सो ऑन। इसी तरह से करते रहना, यानी कि जब 4 ए होंगे तो एक ए और फिर आगे 4 बी, फिर 5 ए होंगे तो एक ए और 5 बी। लेकिन कहां तक, वी हैव टू गो अप टिल इन्फिनिटी। इज इट, हमें कहां तक जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक। तो क्या इनफाइनाइट स्टेट पॉसिबल है हमारे किसी एफ ए में, इज इट क्लास, क्या इनफाइनाइट स्टेट्स पॉसिबल है हमारे किसी एफ ए में? समवन फ्रॉम क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। नो सर। हमने जब एफ ए की डेफिनेशन डिस्कस की थी तो हमने लिखा था ना, इट इज ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, क्यू को कैपिटल क्यू वाज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। लेकिन यहां अगर मैं इसको सही तरीके से बनाता हूं तो मेरी कितनी स्टेट्स आ रही हैं, इनफाइनाइट स्टेट्स आ रही हैं, इज इट। और अगर इनफाइनाइट स्टेट्स आ रही है तो इनफाइनाइट स्टेट्स का तो मैं एफ ए बना ही सकता, एक इनफाइनाइट एफ ए तो बना ही नहीं सकता। एफ ए में मेरी कितनी स्टेट होती है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन नॉट डिजाइन ए एफ ए, यू कैन नॉट ड्रॉ एन एफ ए। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि आप इस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ए नहीं बना सकते? अगर अभी भी डाउट हो तो आप लोग अभी जब लेक्चर ओवर हो जाएगा उसके बाद इसको कोशिश करके देखिएगा, जिस भी तरह से बना सकते हैं, और किसी भी तरह से श्योर करिएगा जितने एज आए उतने ही बीज आए और सारे वर्ड्स के लिए बन जाए। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए तो आप बना सकते हैं, मान लीजिए लैंग्वेज में ये इनफाइनाइट वर्ड्स नहीं हो, केवल ए बी और डबल बी हो, तो मैं केवल इतना पोर्शन एफ ए का लेकर के बाकी ट्रांजिशंस कंप्लीट कर लूंगा जो रह गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आई कैन मेक, बट अगर मुझे ट्रिपल बी चाहिए तो वो इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पोर्शन और लेना पड़ेगा, इज इट। इसी तरह से अगला वर्ड अगर मुझे चाहिए तो उसके बाद एक पोर्शन आगे का और जो है मुझे ड्रॉ, स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स जो इस लैंग्वेज में है उनके लिए तो बना सकता हूं, बट होल लैंग्वेज के लिए मैं एफ ए डिजाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं डिजाइन कर सकता? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स आ रही हैं। यानी कि जो भी एफ एज, जिन भी लैंग्वेजेस में एफ ए बनाने के लिए आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स की आवश्यकता महसूस हो, आप समझ जाइए कि वो लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। अगर लैंग्वेज रेगुलर होगी तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में यू विल बी एबल टू मेक दैट पर्टिकुलर एफ ए, इज इट। हमने वैसे भी डिस्कस किया था कि हमारी जब हम एफ ए पे वर्क करते हैं तो हर जो स्टेट है एफ ए की, दैट रिप्रेजेंट्स ए सोसाइटी ऑफ स्ट्रिंग्स, ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट पर आकर के टर्मिनेट होते हैं, इज इट। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये लिया था, इट इज सपोज बी, इट इज ए, इट इज फाइनल स्टेट ए and B. So this was an FA corresponding to the all strings ending with A. Is it? यही FA था ना। तो अगर आप इसमें देखिए इस स्टेट पे क्या हो रहा है, जितने भी स्ट्रिंग्स B से टर्मिनेट हो रहे हैं वो सब इस पर्टिकुलर स्टेट पर आकर के टर्मिनेट होंगे। जितने भी स्ट्रिंग A से टर्मिनेट हो रहे हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर स्टेट पर आकर के टर्मिनेट होंगे। तो हमारे जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो या तो A से एंड होंगे या B से एंड होंगे। तो उनमें से आधे जो बी पे एंड हो रहे हैं वो इस स्टेट पे आके टर्मिनेट हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे इस स्टेट पे आके टर्मिनेट हो रहे हैं। यानी कि हमारा पूरा जो सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार में जितने भी वर्ड्स हैं
वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है। ओके, एक क्लास ऑल वर्ड्स एंडिंग विद बी, दूसरी क्लास ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए। चूंकि फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस हैं और हर क्लास के करस्पॉन्डिंग मैंने एक स्टेट बनाई है, इज इट? तो चूंकि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में मैं इसको बना सकता हूं, सो दैट्स व्हाई एन एफए इज पॉसिबल एंड द करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज इज रेगुलर, इज इट? लेकिन जहां पे जैसे पर्टिकुलर ये वाला मेरा केस है, यहाँ मेरी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी आ रही हैं? यहाँ मेरी नंबर ऑफ क्लासेस इनफाइनाइट आ रही है। क्यों इनफाइनाइट आ रही है? क्योंकि एक ए को रीड करने के लिए मुझे एक स्टेट चाहिए, दूसरे ए को रीड करने के लिए अगर दो ए मुझे इंश्योर करने की, मैंने दो ए रीड किए तो मुझे दो स्टेट चाहिए, तीन ए रीड किए ये इंश्योर करना है तो तीन स्टेट चाहिए, एंड सो ऑन। चार के लिए चार, पांच के लिए पांच, छह के लिए छह, एंड सो ऑन। सो हाउ मेनी स्टेट्स, हाउ मेनी क्लासेस आई एम क्रिएटिंग? आई एम क्रिएटिंग इनफाइनाइट क्लासेस। ओके, infinite states चाहिएंगी, that is not possible, so that's why this language is not regular. So this is an analytical method. So in general I wanted to say that in the non-regular languages, it is a language that is creating infinite number of classes of the strings in sigma star. sigma star में जितने भी strings हैं ये उनको infinite number of classes में divide कर रहा है, so that's why the language is non-regular. Is it clear or not, class? So it is a difference between the regular and non-regular languages. Regular languages क्या होगा? वो हमेशा सिग्मा स्टार को फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस में, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड करेंगी, ये होंगी रेगुलर लैंग्वेजेस। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड करती हैं तो ये होंगी नॉन रेगुलर लैंग्वेज। Is it clear or not, class? What is the difference between the regular and non-regular? And we can see through this example that this is a language for which I cannot make an FA. This is for this I cannot make an FA. और जिसके लिए मैं FA नहीं बना सकता वो मेरी लैंग्वेज क्या है? रेगुलर नहीं है. So that is a language. Yes, certainly it is a language, but it is not a regular language. It is a non-regular language. और आसानी से अगर आप समझना चाहें तो आगे के लिए मैं आपको एक गाइडलाइन देता हूं कि जहां भी आपको दो क्वांटिटीज मैच करनी है जो कि अनबाउंडेड हो, अनबाउंडेड मीन्स कि इनफाइनाइट तक जा सकती है, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस आपकी क्या होंगी? नॉन रेगुलर होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज योर लैंग्वेज इज a to the power n, b to the power m, such that n और m पे कोई भी restriction हो सकती है, suppose greater than or equal to 1. So will it be a regular language or non-regular language, class? This L will be regular or not? Yes, regular or not? ये non-regular है. कौन कह रहा है non-regular है? Is there somebody who is saying that it is regular? Yes sir, it is regular. It is regular. क्यों regular है? आप ही बताइए चलिए क्यों regular है? You are correct. It is a regular language. क्यों regular है? Yes, यहाँ n और m एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे से इनकी मैचिंग नहीं है कोई. n is independent, m is independent. Is it? n और m का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. So इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज मेरी रेगुलर लैंग्वेज है. ओके, आई कैन राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इट. जैसे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो a स्टार आई कैन राइट फॉर a टू द पावर n. b टू द पावर m के लिए m भी अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सो b स्टार आई कैन राइट फॉर इट. इज इट? क्योंकि मुझे केवल एक a और एक b इंश्योर करना है, आगे कितने भी हो और a और b अलग अलग नंबर में हो सकते हैं, बिकॉज n और m एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे. सो ये लैंग्वेज मेरी क्या है? इट इज ए रेगुलर लैंग्वेज. इज इट? लेकिन अगर वही मैं कह रहा हूं कि l इज इक्वल टू a टू द पावर n, b टू द पावर n प्लस 1, such that n greater than equal to 1. So will it be regular or not? Will it be regular or not? क्लास पहली वाली आपने बताया रेगुलर है, इट इज नॉट रेगुलर. सो इट इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि a की पावर n जितने a आएंगे मुझे उससे एक ज्यादा b चाहिए, यानी b और a का नंबर एक दूसरे पे डिपेंड करता है. सो देयर आर टू क्वांटिटीज which are interrelated,
which are required to be matched. ओके और n पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनबाउंडेड है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अगर मैं यहां एक कंडीशन और लगा दूं एंड n लेस देन इक्वल टू 3, इज इट? सो पॉसिबिलिटीज यहां क्या हो जाएंगी, n के लिए फाइनाइट हो जाएंगी, बाउंडेड हो जाएंगी. इन दैट केस द लैंग्वेज विल बी रेगुलर. इन दैट केस लैंग्वेज विल बी रेगुलर. द सेम लैंग्वेज a की पावर n, b की पावर n प्लस 1. अगर मेरा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि n अनबाउंडेड है, यानी इनफाइनाइट तक जा सकता है, सो इट विल बी नॉन रेगुलर. लेकिन वहीं अगर मैं n पे रेस्ट्रिक्शन लगा दूं, सपोज मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना लिख करके केवल ये लिखता n लेस देन इक्वल टू 3, इज इट? या सिंपली सपोज n इक्वल टू 3, तो मेरी ये लैंग्वेज रेगुलर हो जाती, क्योंकि अगर n इक्वल टू 3 है तो इट विल बी a फाइनाइट लैंग्वेज. इट विल रिप्रेजेंट ओनली वन वर्ड, दैट इज a एंड b. सो जितने a हैं उससे एक ज्यादा b. सो ओनली वन वर्ड विल बी इन दिस लैंग्वेज इफ n इक्वल टू 3. सो बिकॉज द लैंग्वेज इज फाइनाइट, तो फाइनाइट के लिए हम हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फाइनाइट के लिए हम हमेशा fa बना सकते हैं. सो द लैंग्वेज विल बी रेगुलर. बट अगर पॉसिबिलिटीज हैं इनफाइनाइट हो जा रही हैं, जैसे कि n इक्वल टू 3 ना होकर के मैं जैसे लिखा था n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दूं, तब भी इनफाइनाइट है पॉसिबिलिटी. तो जहां भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं और दो क्वांटिटीज मैच करानी है, वहां मेरी लैंग्वेज क्या होगी, इट विल बी नॉन रेगुलर. आई होप थ्रू दीज एग्जांपल्स इट इज क्लियर टू यू हाउ वी कैन आइडेंटिफाई. हालांकि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस और भी बहुत सारी हैं, बट नॉर्मली जो नंबर के टर्म्स में मैच करने वाले आएंगी, इनको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं which language is regular and which language is not regular. Suppose मैं कहता हूं कि L is equal to all words over A comma B over this set. All words over this set where number of A's equal number of B's. So will it be regular or non-regular? अब देखिए यहां क्या था, यहां भी नंबर ऑफ A's और नंबर ऑफ B's इक्वल थे, लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न था कि सारे A पहले आएंगे, सारे B उसके बाद आएंगे, लेकिन दोनों का नंबर बराबर होना चाहिए. यहाँ सारे A पहले आएंगे, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है. यहाँ हो सकता है B पहले आ जाए, हो सकता है A और B मिक्स होकर के आ जाए, बट अल्टीमेटली व्हाट आई हैव टू मेंटेन, नंबर ऑफ A's इक्वल टू नंबर ऑफ B's, इज इट? सो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मेरे पास A आ रहे हैं तो A काउंट करूंगा, फिर उसके इक्विवेलेंट मेरे पास B's आए. सपोज B's पूरे नहीं है, मान लीजिए मेरे पास 4 A आए, तो मुझे 4 A काउंट करने हैं, तो यानी 4 स्टेट चाहिए. ठीक है, इसके बाद सपोज मेरे पास B आने शुरू हुए, 2 B आए, तो यानी कि 2 A तो कैंसिल आउट हो गए मेरे इन 2 B's से, लेकिन 2 A का बैलेंस अभी बचा हुआ है. अब वापस फिर A आने शुरू हो गए, तो वापस में A से तीसरा A, चौथा A, पांचवा A एंड सो ऑन, एंड फिर B आए, और अल्टीमेटली जब मेरा स्ट्रिंग फिनिश हो तो मेरे नंबर ऑफ A's और नंबर ऑफ B's इक्वल हो. सो यहाँ भी आप देखिए दो क्वांटिटीज आपने मैच करनी, नंबर ऑफ A's एंड नंबर ऑफ B's, और वो क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, इवन किसी भी ऑर्डर में आ सकती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो ए नॉन रेगुलर लैंग्वेज. या जहां इन जनरल कॉन्सेप्ट आप ये ले लीजिए, जहां भी आपको दो क्वांटिटीज मैच करनी हो और वो क्वांटिटीज अनबाउंडेड हो, यानी कि उसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आ रही हो, तो वो आपकी लैंग्वेज क्या होगी, नॉन रेगुलर लैंग्वेज. क्लास, इज इट क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस सर. अब इसमें ये देख करके हमें ये तो समझ में आया कि अगर जहाँ A की पावर n, B की पावर n या इस तरह के फॉर्मेट में दिया हुआ होगा, वहाँ हम क्वांटिटीज का रिलेशन है कि नहीं है वो आसानी से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है. बट जैसे इस टाइप की लैंग्वेजेस मैंने लिखी, जहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वांटिटीज नहीं, बट आपको लैंग्वेज से ये एनालाइज करना है कि भाई मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट होंगी कि नहीं होंगी. सो हियर इट मे बी डिफिकल्ट टू फाइंड वेदर देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज और नॉट. ओके, और उसमें इसके अलावा कि जो है अनबाउंड मैचिंग है कि नहीं है, सो इट मे बी डिफिकल्ट. और ये तो मैंने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लैंग्वेज लिया है, देयर मे बी लॉट मेनी लैंग्वेजेस
जो कि बड़े अजीब वे में, अजीब तरीके से आ सकती हैं, इंटरमिक्स्ड वे में आ सकती हैं. सो हाउ टू डिसाइड द गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट. So for this we are having a tool which is known as pumping lemma. Okay, which is known as pumping lemma, and we call it as pumping lemma for regular languages, as we will be having one pumping lemma also for another class of languages which is known as context free languages. Okay, so अभी मैंने आपको एक class of language बताई है, that is the regular language. इसके अलावा बाकी जो जितनी भी languages हैं वो non regular languages हैं. Again, all those non-regular languages are also classified in 3 different classes: context free languages, context sensitive languages and phrase structure languages. Okay, so वो कैसे होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, that is not the point at this point of time. So we are also having a pumping lemma for context free languages, so that's why we will name it as pumping lemma for regular languages. Why we are calling it as pumping lemma? Through this lemma you will understand when we will discuss it that if we have one word from the language available with us, then through that word, using the pumping lemma, we can generate many more words in that particular language if language is regular. Okay, so because from one word you are able to generate many words of the language, so that's why it is pumping the words. So it is called pumping lemma. Okay, let us take one illustration. आप लोगों के घर में हैंड पंप होंगे, किसी के घर में है हैंड पंप? क्लास, इज देयर एनीवन हु इज हैविंग हैंड पंप इन देयर होम? और नहीं भी है, चलिए आपने हैंड पंप देखे तो होंगे ना, कितने लोगों ने हैंड पंप देखे हैं? क्लास? यस सर, देखे हैं ना. अच्छा, हैंड पंप यूज जब आपने किए होंगे तो कभी कभी हैंड पंप में एक प्रॉब्लम आती है कि हैंड पंप का पानी उतर जाता है, यानी कि उसमें आप जब हैंड पंप की हत्ती चलाएंगे तो उसमें से पानी नहीं आता, कहते हैं पानी उतर गया. ऐसी प्रॉब्लम कभी किसी ने फेस की है? यस सर. तो ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है? उसमें क्या करते हैं हम? ऊपर से पानी डालते हैं, फिर आता है 1 लोटा पानी या 1-2 मग्गा पानी ऊपर से उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? उसकी हत्ती को चलाते हैं. इज इट? उससे क्या होता है? पानी ऊपर की तरफ आ जाता है. सो इसी तरह का सिस्टम आपका इस पंपिंग लीमा में है. इफ यू हैव वन वर्ड अवेलेबल विद यू, सो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज दैट वर्ड, और उस वर्ड से पंपिंग लीमा एक तरह से जब आप यूज करें, आप हत्था चला रहे हैं, तो इससे और वर्ड्स जो अंदर हैं, जो छिपे हुए हैं, हिडन हैं, दोज वर्ड्स विल कम आउट, वो बाहर आ जाएंगे. तो बिल्कुल चूंकि हैंड पंप है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसी के नाम पे its name is being given as pumping lemma, because through one word you can pump many more words in that particular language if the language is regular. अगर language regular नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, but अगर language regular है तो आप और words pump कर सकते हैं. That's why it is called pumping lemma. Now let us discuss. I hope this is a vague example, but I have just used this example to make you understand what we are actually doing through this pumping lemma. Okay. Now we take the theorem of this. Let us assume that M is an FA, finite automaton. Finite automaton है तो इसे आप 5 tuple से define कर सकते हैं: Q, sigma, delta, Q0 and F. So it is the set of state, it is the set of alphabet symbol, it is the transition function delta, जो कि अगर टेबल के फॉर्म में है तो ट्रांजिशन टेबल से डिफाइन होगा, और अगर ग्राफ के फॉर्म में है तो ट्रांजिशन ग्राफ से, यानी कि फिगर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Q0 आपकी स्टार्ट स्टेट है और F आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, यानी कि Q की जो भी स्टेट्स फाइनल स्टेट्स होंगी वो किस में आएंगी? F में आएंगी. ओके, सो दिस इज ए फाइनाइट ऑटोमेटन विद n states. We are assuming that in this finite automaton there are n number of states. Now let us also assume that L is regular set accepted by M. So from each FA we accept certain words, and the set of all those words which are accepted by the FA is called the regular set or the regular language defined by that particular FA. So M से define होने वाली language, regular language या regular set क्या है? That regular set is L. So this is the language which is being defined by this finite automaton M. Now we take a word W in L. अब जो मेरे FA की लैंग्वेज थी L, उसमें से मैंने कोई एक वर्ड चूज किया W, और किस तरह से चूज किया कि उस वर्ड W की लेंथ क्या है? M है. ओके,
अगर ये m ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, n मीन्स नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि मेरे एफ में जितनी स्टेट्स हैं उससे ज्यादा लेंथ का कोई वर्ड मैंने w ले लिया, w की लेंथ क्या है m, और आई एम क्लेमिंग दैट इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। सो यानी कि मेरे पास अगर सपोज 5 स्टेट थी मेरे एफ में, तो मैंने कोई ऐसा वर्ड लिया जिसकी लेंथ 5 से ज्यादा है। ओके, सपोज m की वैल्यू मैंने 6 ले ली, तो 6 इज ग्रेटर देन 5। सो जितने भी मेरे पास स्टेट है एफ में उनसे ज्यादा लेंथ का मैंने कोई भी एक वर्ड w चूज कर लिया। ओके, देन देयर एग्जिस्ट स्ट्रिंग्स x y z सच दैट w is equal to x y z and y is not equal to null and x y is less than equal to n, length of x y is less than equal to n। what does it mean? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि मैंने कोई एक ऐसा वर्ड w लिया है जिसकी लेंथ मेरे एफ में जितनी स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा है, तो मैं उसको 3 स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला स्ट्रिंग क्या है मेरा x, दूसरा स्ट्रिंग मेरा क्या है y, और तीसरा स्ट्रिंग मेरा क्या है z। यानी कि मैं w को 3 हिस्सों में स्लाइस कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। पहला हिस्सा क्या कहलाएगा x, दूसरा मिडिल का हिस्सा क्या कहलाएगा y, और तीसरा हिस्सा क्या कहलाएगा z। और ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ कि मैं इसमें इंश्योर कर रहा हूँ कि y इज नॉट इक्वल टू नल, y इज नॉट इक्वल टू नल। x नल हो सकता है, z नल हो सकता है, बट y नल नहीं हो सकता। y नल ना हो ये मुझे इंश्योर करना है, इज इट? सो मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि y नल ना हो, इस तरह से w को 3 हिस्सों में डिवाइड करूँ कि बीच का हिस्सा नल स्ट्रिंग ना हो, इज इट? और साथ में लेंथ ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू n, यानी कि x और y की मिला के लेंथ n से छोटी हो, n के बराबर हो मैक्सिमम या उससे छोटी हो। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें से जो है ये जो मेरा x और y है इसकी लेंथ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे शुरू के जो 2 हिस्से हैं इसकी लेंथ n से छोटी या बराबर होनी चाहिए, इज इट? ये मेरी तीसरी कंडीशन है। तो अगर मैं इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए w को ब्रेक करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास कोई वर्ड है, कोई एफ है विच इज ए 2 स्टेट एफ, जैसे हमने पहले बनाया था, ये b, ये a, ये मेरी फाइनल स्टेट। on a I will stay here, on b I will move here, ठीक है? it is so all words ending with a, okay, it is a 2 state FA। अब मैं कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ले लूं जो कि जिसकी लेंथ 2 से ज्यादा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया b a a, सपोज लाइक दिस, ओके, ये मैंने एक वर्ड ले लिया इसमें, इज इट? सो दिस विल बी ए वर्ड इन दिस लैंग्वेज, सो w belongs to this language, all words ending with a, it is ending with a, so it is a word in this language। और इसकी लेंथ क्या है, इसके FA में जितनी स्टेट्स हैं उससे ज़्यादा है। तो अब मैं इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। सपोज मैं पहला हिस्सा दिस इज माई x से, ये मेरा दूसरा हिस्सा दिस इज माई y, और ये सपोज मेरा तीसरा हिस्सा z। सो x y z में मैंने डिवाइड कर लिया, और मैंने साथ में ये भी इंश्योर किया दैट y इज नॉट नल, y इज a, सो इट इज नॉट नल, यानी कि इसे मैंने नल स्ट्रिंग नहीं लिया, इज इट? और x y की लेंथ लेस देन और इक्वल टू n हो, तो यहाँ n मेरे पास 2 स्टेट थी, तो x और y की मिलाकर के जो लेंथ है वो 2 ही है, यानी कि इस कंडीशन को भी मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। देन आई से दैट x y टू द पावर i z विल बिलोंग टू l फॉर एवरी i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि अगर x y z बिलोंग कर रहा है l को, तो x y टू दी पावर i z भी बिलोंग करेगा l को। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो बीच वाला हिस्सा है उसको आप कितनी भी बार रिपीट कर लो, x पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा वही रहेगा, बीच वाले हिस्से को आप कितनी भी बार रिपीट कर लो, दैट विल बी ए वर्ड इन l। तो यानी कि आपके पास केवल एक वर्ड w था, इस w से आप मल्टीपल वर्ड्स जनरेट कर सकते हो अगर आपकी लैंग्वेज रेगुलर। आप देखिए मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है, एक लैंग्वेज है मेरे पास, उससे मैंने w लेकर के कर रखा। अब मैं करता हूँ x y टू द पावर i z, जस्ट चेक x y i की वैल्यू में 0 लेता हूँ, यानी कि इस y को डिलीट कर देता हूँ, यानी कि a नहीं आएगा, केवल z आएगा, यानी कि xz will be what? It will be b and z is what? double a। So this will also be a word in this language, you can say, is it or not? So for I equal to 0, you will have the word xz that is equivalent to ba. So this will also be a word in this language. Okay. Similarly, if you take the value for I is 2, okay, for value of I is 2 means your word will be value of I is equal to 2, means your word will be
x y y z, यानी x y to the power 2 z. So अब x क्या है? x तो देखिए b है आपका, so as it is आ गया. y क्या है? a है, so हर y की जगह a आ गया, b a. z क्या है? डबल a. So this will also be a word in this language, is it or not? Just आप चेक कर लीजिए, आप I की वैल्यूज चेंज करते रहिए and you will be generating more words in this particular language because your language is regular. I hope what pumping lima is, you can understand it, class. Is it clear? Yeah. What do we mean by pumping lima and how pumping lima is useful for generating more words if a word of sufficient length is given to you? Okay, so now we are moving to the proof of this. अब हमें ये प्रूफ करना है, हमने क्लेम तो कर लिया कि अगर ऐसा ऐसा हो तो ऐसा होगा. So एक तरह से समझिए यहाँ तक का हमारा जितना भी हिस्सा है, that is what? That is assumption and breaking. और ये हिस्सा क्या है हमारा? रिजल्ट. कि अगर ये हम सक्सेसफुली कर पाते हैं पहला हिस्सा, तो दूसरा हिस्सा जरूर एग्जिस्ट करेगा. यानी कि अगर ये सारी कंडीशंस मैच कर रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और चौथी का फर्स्ट पार्ट, अगर ये मैच कर रहा है तो चौथे का जो ये सेकंड पार्ट है, this is going to happen, this will be sure, is it? So this we have to prove. इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वर्ड एज्यूम कर लेते हैं W. हम एक वर्ड एज्यूम कर लेते हैं W is equal to A1, A2, A3 and so on up till AM. Is it? M लेंथ का, चूंकि हमें M लेंथ का वर्ड चाहिए था तो इसलिए हमने A1 से लेके AM तक M लेंथ का एक वर्ड ले लिया. एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ऑटोमेटन इज हैविंग n नंबर ऑफ स्टेट्स. सो ये W ले लिया. अब मैं क्या करूंगा, जब इस W को ऑटोमेटन पे एग्जीक्यूट कराऊंगा, so a sequence of state will get generated. So that sequence of state I am suppose claiming as Q1. Okay, capital Q1. So this is a sequence of states generated. मैं सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँगा? Q0 से शुरू करूँगा, ये मेरी स्टार्ट स्टेट है. जब A1 अप्लाई करूँगा, सपोज मैं एज्यूम करता हूँ मेरे पास Q1 स्टेट पे पहुँच गया. अब मैं Q1 स्टेट में हूँ, अगला सिंबल अप्लाई करूँगा. अगला सिंबल क्या है? A2. तो A2 अप्लाई करूँगा तो कहाँ पहुँचूंगा? सपोज अगली स्टेट पे पहुँचा, किसी Q2. ठीक है. इसी तरह से जब अब Q2 स्टेट पे हूँ, अगला सिंबल अप्लाई करूँगा, तो सपोज Q2 स्टेट में मैंने अगला सिंबल A3 अप्लाई किया, सपोज मैं Q3 स्टेट पर पहुँचा, एंड सो ऑन. इसी तरह से मैं स्टेट टू स्टेट मूव करता रहा, और जब लास्ट सिंबल AM मैंने अप्लाई किया तो मैं किस स्टेट पे पहुंचा? QM स्टेट पे पहुंचा. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स which I will get on application of a word W which is having the length M. Is it clear or not, class? Is it clear? Class. आप थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्ड किया करिए, तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं. ओके, सो इट विल बी. अच्छा, अब ये जो मेरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कितनी स्टेट्स होंगी? समबडी फ्रॉम द क्लास, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस? इट विल बी M+1. देखिए Q0 से स्टार्ट हुआ है और Q1, Q2 हर सिंबल के एप्लीकेशन पे मैं एक नई स्टेट पे गया हूँ. इज इट? सो मैं कितनी QM तक पहुंचा? सो देयर आर M+1 स्टेट्स. ओके, यानी कि दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूं? देयर आर एट लीस्ट N+1 स्टेट्स. अब M+1 से मैं N+1 पे कैसे आ गया? देखिए मैंने क्या एज्यूम किया? M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M. M या तो N से बराबर है या बड़ा, यानी कम से कम क्या होगा? N के बराबर होगा. अगर M और N इक्वल भी हैं, अगर M बड़ा है N से, तब तो N+1 से भी ज़्यादा स्टेट्स होंगी. ठीक है, चूंकि टोटल M+1 स्टेट्स हैं, अगर M की वैल्यू N से बड़ी है तो N+1 से भी ज़्यादा स्टेट्स होंगी. लेकिन अगर बराबर भी है तो कम से कम N+1 स्टेट्स तो होंगी ही होंगी. इज इट और नॉट, क्लास? At least there will be N+1 states in this particular sequence Q1 which I have got after application of this word W. Class, are you sure?
that at least n plus 1 states will be there? नहीं समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन करके पूछिए। समझा दीजिए। देखिए ये मेरा वर्ड W था m लेंथ का, ठीक है। अभी बाकी सब कुछ भूल जाइए, केवल इस वर्ड W को मैं अपने FA पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। Q0 स्टेट से स्टार्ट करूंगा, पहला लेटर रीड करूंगा A1, कौन सी स्टेट आएगी? Q1, इज इट ओके। अब मैं Q1 स्टेट में हूं, अगला सिंबल इनपुट से रीड करूंगा, अगला सिंबल क्या है? A2। सो Q1 पे A2 अप्लाई करूंगा, सपोज मैं पहुंच गया Q2। इसी तरह से एक एक सिंबल में रीड करता गया और स्टेट चेंज करता गया। लास्ट सिंबल AM जब मैंने अप्लाई किया, मेरी स्टेट कौन सी आई? QM। सो कितनी स्टेट्स हैं इस सीक्वेंस में? देखिए 1 से लेके M तक तो M स्टेट्स हो गई, और एक ये Q0 वाली, यानी कि टोटल M प्लस 1 स्टेट्स हो गई, इज इट। अब मैं कहता हूं कि M की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू N। अभी ग्रेटर देन भूल जाइए, अगर M की वैल्यू N है, M और N इक्वल है, तो अगर मैं कहता हूं मेरे पास M प्लस 1 स्टेट्स है, तो मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पास N प्लस 1 स्टेट्स है। यहां तक तो क्लियर है क्लास? अगर मैं कहता हूं मेरे पास M प्लस 1 स्टेट्स हैं और मैं एज्यूम करता हूं M मेरा N के इक्वल है, तो मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पास N प्लस 1 स्टेट्स हैं, इज इट? यस सर। ओके। अब अगर मेरा M N से बड़ा है, सपोज N की वैल्यू मेरी 2 थी और M की वैल्यू मेरी 4 थी, तो मेरे पास यहाँ कितनी स्टेट्स आई? 4 प्लस 1 यानी कि 5 स्टेट्स आई। और मेरा N प्लस 1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो कितनी स्टेट्स है? 3 से ज्यादा स्टेट्स हैं। यानी कि जब M की वैल्यू N से बड़ी होगी तो आपके पास N प्लस 1 से ज्यादा स्टेट्स आएंगी। जब M की वैल्यू N के बराबर होगी तो N प्लस 1 स्टेट्स आएंगी। M की वैल्यू जब N से बड़ी होगी तो N प्लस 1 से ज्यादा स्टेट्स आएंगी। इतना क्लियर है? जैसे इस एग्जाम्पल से आपने देखा 5 इज ग्रेटर देन 3, या अगर M की वैल्यू मेरी 3 भी होती तो मेरे पास कितनी स्टेट्स आती? 3 प्लस 1, 4 स्टेट्स आती। वो भी क्या है? N प्लस 1 यानी कि 3 से बड़ा है, इज इट। और बराबर कब आती? जब मेरा M की वैल्यू भी 3 ना होकर के 2 ही होती है। M और N बराबर होते तो क्या होता? यहाँ मेरे पास 2 प्लस 1 यानी कि 3 स्टेट आती, और N प्लस 1 से भी क्या आ रहा है? 3 स्टेट्स आ रही, यानी कि बराबर स्टेट्स आ रही, यानी कम से कम N प्लस 1 स्टेट्स आ रही है। आप समझ में आया? एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं? M को N के टर्म्स में रिड्यूस कर रहा हूं, इज इट। जो चीज मुझे M के टर्म्स में मिली है उसे N के टर्म्स में रिड्यूस कर रहा हूं। रिलेशनशिप है, सिंपल रिलेशनशिप। क्लास यस सर। ओके। सो देयर विल बी एटलीस्ट N प्लस 1 स्टेट्स। लेकिन मेरे FA में कितनी स्टेट्स हैं? मेरे FA में कितनी स्टेट्स हैं? N स्टेट्स। मेरे FA में कितनी स्टेट्स हैं? N स्टेट्स। और यहां मुझे क्या मिल रही है? N प्लस 1 स्टेट्स का सीक्वेंस। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस में कम से कम कोई एक स्टेट रिपीटेड है, इज इट और नॉट? क्लास, इज इट और नॉट? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा। एक पिजन होल प्रिंसिपल होता है। पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि सपोज आपके पास n नंबर ऑफ जो है मतलब ब्लॉक्स हैं, n नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जहां पे आप पिजन्स को रख सकते हैं, इज इट। और आपके पास पिजन्स n से ज्यादा हैं, सो देयर विल बी एटलीस्ट 1 ब्लॉक और 1 प्लेस वेयर मोर देन 1 पिजन विल बी देयर। अब जैसे अगर आप यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखें, तो मेरे पास 9 होल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होल्स हैं। और मेरे पास अगर 10 पिजन्स हैं तो कम से कम कोई एक होल ऐसा जरूर होगा जिसमें एक से ज्यादा पिजन्स होंगे, इज इट। क्यों? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ होल्स कम है, पिजन ज्यादा है, और अगर मैं ज्यादा की कम से मैपिंग करूंगा तो इट विल बी ए मेनी टू वन मैपिंग। ओके, तो आप देखिए यहाँ 1 1 1 1, यहाँ सब 1 1, यहाँ सब 1 1। केवल इस वाले को, सबसे पहले वाले को देखिए, यहाँ आपके पास क्या है? 2 पिजन्स है। सो इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल। यही पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ लगा है। आपने क्या किया? एक वर्ड W अप्लाई किया, W अप्लाई करके आपको एक सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स मिला,
एंड वी आर अज्यूमिंग दैट हमारी इसमें सारी की सारी स्टेट्स जो है वर्ड कोई ना कोई सिंबल अप्लाई करके आ रही हैं और सारी स्टेट डिस्टिंक्ट हैं। तो मेरे पास कितनी डिस्टिंक्ट स्टेट हुई? कम से कम n+1 डिस्टिंक्ट स्टेट्स हुई, मगर मेरे एफ में तो टोटल n ही स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये n+1 स्टेट्स या इससे ज़्यादा जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से कुछ स्टेट डिस्टिंक्ट नहीं है, डुप्लीकेट है। इज इट? तो यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं मेरे पास डुप्लीकेट स्टेट्स आ रही हैं। इज इट? यहाँ तक क्लियर है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कुछ स्टेट्स डुप्लीकेट होंगी। क्लास? यस सर। यस सर। स्टेट्स डुप्लीकेट होंगी हमारे पास। अब इन मल्टीपल पेयर्स ऑफ डुप्लीकेट स्टेट्स, अब हो सकता है कि Q1 और Q2 डुप्लीकेट हुई हो, इसके बाद Q5 और Q7 डुप्लीकेट हुई हो, या जो है सपोज Q1 और Q8 जाकर के डुप्लीकेट हुई हो कि Q1 आया है यहाँ पे और Q8 पे जो मेरी स्टेट आ रही है दैट इज ऑल्सो द सेम स्टेट विच इज Q1। ओके, सो मल्टीपल पेयर्स में बी देयर जो कि डुप्लीकेट पेयर्स हो। इनमें से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सबसे पहला डुप्लीकेट पेयर है हम उसको ले ले रहे हैं। ओके, एंड वी से दैट it is called as Qj and Qk. So first duplicate pair ले रहे हैं हम, इसको हम कह रहे हैं Qj and Qk। मीन्स एक तो jth इंडेक्स पे जो स्टेट है और जो kth इंडेक्स पे स्टेट है वो दोनों स्टेट क्या है, सेम स्टेट है, so they are the duplicates। okay, so there will be a condition something like this: 0 is less than equal to j is less than k is less than equal to n। is it or not? आप देखिए, मैं जब वर्ड्स अप्लाई किए, सिंबल अप्लाई किए, so Q0 से मैं क्या पहुंचा, Qj पे पहुंच गया। ठीक है, ओके, उसके बाद Qj पे पहुंचने के बाद मैंने कुछ और सिंबल अप्लाई किए होंगे बीच में। ठीक है, तो मैं पहुंचा Qk पे, यानी कि j और k इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि मैं कम से कम कोई एक सिंबल अप्लाई करने पे हो रहा हूँ। j को मैं 0 के इक्विवेलेंट किस लिए कर रहा हूँ कि हो सकता है पहले मेरी Q0 स्टेट ही आगे जाकर के डुप्लीकेट हो गई है। इज इट? ओके, दैट्स व्हाई 0 इज लेस देन और इक्वल टू j, बट इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन k, क्योंकि j से Qj से मैं Qk पे जब पहुंचाऊंगा तो किसी ना किसी सिंबल, मान लीजिए Q0 पे था, मैंने एक सिंबल अप्लाई किया और वापस Q0 पे आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट रिपीटेड पेयर। ओके, या मैंने Q0 पे था, पहला एक सिंबल अप्लाई किया, दूसरा सिंबल अप्लाई किया और फिर मैं Q0 पे पहुंचा, यानी दो सिंबल अप्लाई करने पहुंचा, तो यानी कि इतना हिस्सा मेरा क्या है, ये लूप है एक, और ये मेरा डुप्लीकेट पेयर है। इज इट? सो k विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन j, एंड हो सकता है ये मैं Q0 यहाँ पे आ रहा और लास्ट में जाकर के मेरी QM स्टेट वापस Q0 हो गई हो। ओके, सो जो j है वो n के इक्वल हो सकता है। इज इट? सो दैट्स व्हाई ये मेरी आइडेंटिटी बन गई, 0 इज लेस देन इक्वल टू j, लेस देन k एंड लेस देन इक्वल टू n। यहाँ तक क्लियर? और अगर मेरा ऐसा हुआ तो मैं अपने वर्ड को 3 डिफरेंट हिस्सों में लिख सकता हूँ। सो माई स्ट्रिंग w कैन बी डिकम्पोज्ड into 3 strings। वो 3 स्ट्रिंग कौन से होंगे? A1, A2 एंड सो ऑन अप टिल AJ, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, X। दूसरा क्या होगा मेरा, AJ+1, AJ+2 एंड सो ऑन अप टिल AK, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, Y। और तीसरा क्या होगा मेरा, AK+1, AK+2 एंड सो ऑन अप टिल AM, जिसको मैं कह रहा हूँ Z। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? देखिए 0 से J तक, यानी जब जो मेरा रिपीटेड पेयर है 0 से J तक तो मैं सीधा गया, तो इसको मैं कह रहा हूँ, इस हिस्से को कह रहा हूँ X। उसके बाद J से K तक, J+1 से K तक मैंने जो भी सिंबल अप्लाई किए उनको अप्लाई करने के बाद मैं वापस इसी Qj स्टेट पे लौटा है। उस स्टेट को मैं इस सीक्वेंस में Qk कह रहा हूँ, बट दैट इज सिमिलर टू Qj, यानी कि वापस उसी स्टेट पे लौट के आया। तो इस लूप वाले पोर्शन को, इस रिपीटेड वाले हिस्से को मैं क्या कह रहा हूँ, y। और उसके बाद जब ये रिपीटेड वाला हिस्सा, यानी कि इसके बाद AK+1, AK+2 एंड सो ऑन, आखिर तक जो कुछ भी बचा, यानी k से लेके n तक जो कुछ भी, K+1 से लेके n तक जो कुछ भी बचा, दैट आई एम कॉलिंग इट एज z। सो इस तरह से मैंने क्या किया, w को
डिकम्पोज कर लिया 3 हिस्सों में x, y, z. So यानी कि I can write w is equal to x, y, z. Is it? So now I think you can understand how we are dividing our w into the x, y, and z. Is it clear, class? Yes, sir. Okay. अब आप देखिए y कैन नॉट बी इक्वल टू नल. ये यहां कैसे इंश्योर होगा? अब देखिए जब आप एजे पे पहुंचे तो कोई ना कोई सिंबल अप्लाई करेंगे तभी तो अगली स्टेट पे पहुंचेंगे. तो के पे पहुंचने के लिए आपको कम से कम एक सिंबल अप्लाई करना पड़ेगा. इज इट? सो दैट्स व्हाई वाई कैन नॉट बी इक्वल टू नल. तो ये चीज हमने इंश्योर की. दूसरी चीज हमें क्या इंश्योर करनी थी कि एक्स वाई इसकी जो लेंथ है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन. इज इट? वो कैसे इंश्योर हो रहा है? देखिए जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू कम से कम क्या है? एन. ओ सॉरी, के की वैल्यू मैक्सिमम क्या है? एन. के मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? के एन से छोटा ही छोटा होगा. देखिए के एन से छोटा होगा या मैक्सिमम क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है. यानी के की वैल्यू मैक्सिमम एन के बराबर हो सकती है. अब के तक आपके कौन सा स्ट्रिंग है? एक्स और वाई मिलाकर के आपका के लेंथ तक का स्ट्रिंग बनता है. तो यानी कि यहां तक की स्ट्रिंग की आपकी लेंथ क्या है? मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? एन हो सकती है. दैट्स व्हाई यू आर इंश्योरिंग दैट लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एन. तो आपने यानी कि w को एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी लिख लिया. आपने ये भी इंश्योर किया कि y नल नहीं है. आपने ये भी इंश्योर किया कि लेंथ ऑफ एक्स वाई यानी एक्स और वाई पहले दो हिस्सों की लेंथ मिला करके n से छोटी ही छोटी है. छोटी है या मैक्सिमम बराबर है. तो यानी कि आपने पंपिंग लीमा की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया. w को आपने एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा, y को नल नहीं है ये श्योर किया और एक्स वाई की लेंथ n या उससे छोटी है ये आपने श्योर की. जब सारी आपने कंडीशन श्योर कर दी तो अब एक्स वाई टू द पावर आई जेड शुड ऑल्सो बिलोंग टू एल. तो अब हम देखिए एफ ए पर आ जाते हैं. मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट स्टेट से. तो Q0 मेरी स्टार्ट स्टेट. Q0 से मैंने स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग w एग्जीक्यूट करना शुरू किया. अब मैं इसके एक एक हिस्से को एग्जीक्यूट करूंगा. पहले x एग्जीक्यूट करूंगा. तो जैसे ही मैं Q0 पे x अप्लाई करूंगा I will reach to a state that is known as QJ. Is it? Is it or not? उसके बाद क्या है? मैं इसका अगला हिस्सा y अप्लाई करूंगा. So y को अप्लाई करके I will reach to a state which is QK. Which is QK. But QK is incidentally equal to QJ. क्योंकि ये मेरा डुप्लीकेट पेयर है. So QJ is equal to QK यानी कि y को अप्लाई करने पे I will come back to the same state. बीच में कुछ और स्टेट्स होंगी कि QJ से किसी और स्टेट पे गया, फिर उससे किसी और पे गया, फिर उससे किसी और पे गया, बट अल्टीमेटली मैं किस पे वापस आया? इसी स्टेट पर वापस आ गया बिकॉज QJ इज इक्वल टू QK. यानी मैंने पहला हिस्सा अप्लाई किया, QJ पे पहुंचा, दूसरा हिस्सा अप्लाई किया, वापस QJ पे उसी स्टेट पर वापस आ गया. अब इसके बाद मैंने इससे यहाँ क्या अप्लाई किया? Z अप्लाई किया, बचा हुआ हिस्सा. तो मैं क्या पहुंच गया? मैं QM पे पहुंच गया विच वॉज इंसिडेंटली ए फाइनल स्टेट. क्योंकि मेरा जो W वर्ड है इट बिलोंग्स टू L. यानी कि L को बिलोंग कर रहा है. यानी कि AM को अप्लाई करने पे जो मेरी स्टेट QM है दिस शुड बी ए फाइनल स्टेट. सो आई हैव रीच्ड टू ए फाइनल स्टेट. इज इट? सो मेरी ये सिचुएशन बन गई. यहाँ तक क्लियर है क्लास? Q0 पे मैंने X अप्लाई किया तो QJ पे पहुंचा, उस पर Y अप्लाई किया तो वापस QJ पे पहुंचा, फिर Z अप्लाई किया तो किसी फाइनल स्टेट QM पर पहुंच गया. इज इट? So this will be the execution of this word W over the FA. Is it clear or not, class? Yes sir. Okay. अब आप देखिए अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है XZ यानी कि y टू दी पावर I की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 0. इज इट? I की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 0. यानी कि y को रिड्यूस कर दिया है, इसमें से XZ बचा केवल. तो अगर XZ हो तो X अप्लाई करने पे कहाँ पहुंचूंगा? QZ. और Z अप्लाई करने पे कहाँ पहुंचूंगा? QM. यानी कि XZ will belong to L. Is it or not? So for I is equal to 0, this situation XY to the power IZ belongs to L is true or not, class? Is it true or not, class? For I equal to 0, I have proved that XY to the power IZ will belong to L. For I equal to 0, class. Is it clear? Yes.
Okay. Sir. And suppose if I take I is equal to 2. I is equal to 2 यानी कि y का 2 बार रेपिटेशन. y की पावर आई है ना, y की पावर 2. तो मेरा वर्ड क्या बना? x y टू द पावर 2 z. ठीक है. तो x अप्लाई किया, qj पे पहुंचा. y को पहली बार अप्लाई करा, वापस qj पे पहुंचा. y को दूसरी बार अप्लाई करा, वापस qj पे पहुंचा. फिर z को अप्लाई किया, कहां पहुंच गया? qm पे. मीन्स x y टू द पावर 2z विल ऑल्सो बिलोंग टू l. इज इट और नॉट क्लास? Yes, sir. So for I is equal to 2 also I have proved that x y to the power I z belongs to L. Similarly, I take any value of I, suppose 3, 4, 5. So I will apply x, then suppose my value is 4. So 4 times I will apply y. पहली बार y अप्लाई करूंगा, वापस ही आऊंगा. फिर दूसरी बार y अप्लाई करूंगा, फिर वापस ही आऊंगा. तीसरी बार y अप्लाई करूंगा, फिर वापस ही आऊंगा. चौथी बार y अप्लाई करूंगा, फिर वापस ही आऊंगा. फिर z अप्लाई करूंगा, I will reach to final state. Meaning thereby all words which are of the form x y to the power I z, they will certainly belong to L for all values of I greater than or equal to 0. For all values of I greater than or equal to 0. This is the symbol for all values. आपने पढ़ा होगा. So hence proved, it is the theorem. So we have proved the pumping lemma. Is it clear to class or not? If you have any doubt, you can ask. और इसको लिखने के लिए जो डिटेल्स है, मैंने देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया सारा का सारा. इसको लिखने के लिए जो डिटेल्स हैं, उसके लिए आप कोई ना कोई बुक फॉलो कर लीजिए. जैसे KLP मिश्रा है, उसमें काफ़ी सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं. या कोहेन या जो है उलमैन, किसी भी बुक से आप देख सकते हैं. एनी बुक, JC मार्टिन, किसी भी बुक से आप देख सकते हैं. तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस प्रूफ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं. इज इट? हालांकि वैसे आपका पेपर आगे होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जैसा सुन रहे हैं. तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो ऑब्वियस सी बात है, प्रूफ तो नहीं आएगा. बट यू शुड नो हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम, हाउ वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट अगर हमारी ये कंडीशंस मैच करती हैं तो x y टू द पावर I z विल बिलोंग टू L फॉर ईच वैल्यू ऑफ I ग्रेटर देन इक्वल टू 0. I hope it is clear, class. If it is clear, then we can stop at this point of time. And its application we will be discussing in the next lecture. So there we will take certain questions, certain languages, which we will prove that they are non-regular because they do not fulfill the requirements of the pumping lemma. So अगर न्यूमेरिकल पेपर आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो जैसे ऑब्जेक्टिव में भी आपके क्या हो सकता है, आपको लैंग्वेज दी जा सकती है. लैंग्वेज दी और बताइए कि ये रेगुलर है या नहीं है. सो भले ही आपको वहाँ उसको सॉल्व करके नहीं दिखाना, बट आपको कहीं ना कहीं सॉल्व तो करना पड़ेगा, तभी आपको सोल्यूशन पता चलेगा कि रेगुलर है या नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट्स एप्लीकेशन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो एप्लीकेशन विल बी डिस्कसिंग ऑन नेक्स्ट लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग क्लास. Clear, sir. Okay, so I am closing at this point of time, and application will be discussing on next lecture. Okay. Thank you, sir. Okay, I have taken the attendance. You can leave the class.